عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں بتاؤں گا کہ کس طرح ممبئی میں مرغا واک کرایا گیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ شادی کے انکار کرنے پر لڑکی کے والد کو کس طرح پیٹ کر کے قتل کر دیا گیا۔ وہ 11 مہینے کے اندر اپنی 3 بیٹوں کو کھونے والے ماں باپ کی بات کروں گا میں۔ اکشے کمار کی ٹرولنگ کیوں ہو رہی ہے آج ہولی پر ایک تبصرے کو لے کر کے وہ، اور پھر بنگال کی میں شیرنی ہوں کہہ کر کے آخر ممتا نے کسے جواب دیا ہے۔ انڈونیشیا کے صدر نے چرچ گیٹ پر ہوئے حملے پر کیا تبصرہ کیا ہے، اور انڈونیشیا میں دھماکہ کہاں ہوا ہے، وہ ساری چیزیں رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام شروع ہو چکا ہے سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے پہاڑی علاقوں میں، اور لگاتار آپ لوگوں کے تعاون سے ہم لوگوں کا یہ کام جاری ہو چکا ہے، اور ہم آپ کی امانتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بالخصوص جموں کشمیر کے جہاں لوگ نہیں پہنچتے وہاں پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ تمام لوگ بھی اس میں حصہ لیں، اور ظاہر سی بات ہے رمضان کی بھی آمد ہے اور شعبان کا بھی مہینہ ہے، ضرور جو ہے راشن کٹ اور ان کی ضروریات کی چیزیں ان لوگوں تک پہنچانے میں اور ان کے مسائل حل کرنے میں ہم لوگوں کا سپورٹ کریں۔ یہ نیچے پوری تفصیلات دی جا رہی ہیں، جہاں جہاں ہمارے ٹیم پہنچے گی، جہاں پر جو ہے یہ راشن وغیرہ کی تقسیم ہوگی، وہاں کی تصویریں ہم آپ لوگوں کے سامنے وقتاً فوقتاً پہنچاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے گا الگ الگ انداز میں، اور بھی دیگر علاقوں میں بھی کام شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کی تصاویر بھی آپ لوگوں کے سامنے لائی جائیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی، چلتے ہیں خبروں کی جانب اور بات کرتے ہیں۔ اس وقت ایک تصویر اس وقت بدلے گی، آپ لوگ دیکھیں ناظرین گرامی، یہ ہے سری رام سینا کا کنوینر، اور اس کا نام ہے پرساد اتاور۔ اس کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کسی چینل میں آپ کو یہ خبر نہیں سنائی جائے گی، جبکہ دیگر پارٹیوں کی اگر چھوٹی سی چھوٹی نیوز بھی ہوتی ہے تو اس پر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتا ہے، اس پر کوئی تبصرہ بھی نہیں ہو رہا ہے، نہ ہی سوشل میڈیا میں کسی قسم کی بحث جاری ہے، لیکن بعض لوگ اس تصویر کو پیش کر کے جو ہے اس پر تبصرے کر رہے ہیں، یہی کہتے ہوئے کہ بھائی اس خبر کو میڈیا میں کیوں دبایا گیا۔ دراصل اس کی گرفتاری ہوئی ہے چیٹنگ کرنے کے الزام میں۔ جی ہاں، وویک آچاریہ نامی شخص کو وائس چانسلر کا پوسٹ مرکزی حکومت سے یا ریاستی حکومت سے بات کر کے دلوانے کا بہانہ بنا کر کے یقین دلا کر کے 30 لاکھ روپے کا مطالبہ رکھا، اور 17.5 یعنی 17,50,000 روپے ایڈوانس میں لے لیے، اور پھر باقی کا اماؤنٹ جو ہے چیک کے ذریعے سے لے لیا، لیکن جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا، پیسہ پورا ہڑپ لیا، جھوٹا اور دھوکہ دیا۔ تو اس سلسلے میں اس کو 406، 506 اور 420 کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سری رام سینا کا کنوینر ہونے کی وجہ سے خبر اس وقت دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن سیدھی بات آپ کے سامنے ضرور رکھے گا۔ شخص کا نام ہے پرساد اتاور، اور یہ ہے سری رام سینا کا کنوینر، جس کو وویک آچاریہ نامی شخص کو چیٹنگ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، ہم نے گزشتہ سال لاک ڈاؤن کے موقع پر پولیس افسران کی جانب سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف الگ الگ سزائیں دیتی ہوئی دیکھے، اور عوام کو پولیسوں کی جانب سے بھگا کر کے پیٹنا، کبھی مندر میں، کبھی مسجد میں، کبھی نمازیوں پر ظلم و ستم کی کہانیاں سنی۔ بہت سارے ویڈیوز وائرل ہوئے، ابھی بھی آپ کے موبائل میں پڑے ہوں گے یا کہیں سوشل میڈیا میں دیکھنے کو ملے گا۔ اب یہ ممبئی سے میرین علاقے سے آ رہی ہے، اور اس کو ایک شخص نے شیئر کیا ہے
मुंबई पुलिस को जो है पूरी तरह से टैग करते हुए कि ये देखिए आपकी पुलिस जो है लॉकडाउन के मौके पर मरीन ड्राइव में किस तरह से जो है एक लोगों को तपती हुई धूप में मुर्गा वॉक कराने की सज़ा दे रहे हैं, कहते हुए जो है इसको वहाँ के मकामी अखबारात ने भी इसको शाये किया है और इस वीडियो को शेयर किया है। बहकैफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है लॉकडाउन एक मरतबा फिर वही ज़माना याद दिला रहा है, वही मंज़र हमारे सामने पेश कर रहा है जो 1 साल पहले बहुत बुरी तरह से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस अफसरान की जानिब से रियासत बल्कि भारत के हर रियासत में इस तरह के, हर शहर और गाँव में इस तरह के देखने को मिली। कभी रास्ते में रेंगते हुए सज़ाएं दी गई, कभी पिटाई की गई, कभी सर पर हाथ रख कर के चलने पे मजबूर किया गया, कभी मुर्गा बनने पर, कभी मुर्गा वॉक करने पर। अब ये ताज़ा वीडियो आ रही है मुंबई से। अब इस बात को लेकर के एक तो शेयर भी हो रही हैं और पुलिस का ये जुल्म है या फिर पुलिस ने सही किया है, इस बात को लेकर के जो है पूरी तरह से इस वक्त बहस जारी है सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, भारत, जी हाँ भारत बदल रहा है और बुरी तरह से बदल रहा है। इस कदर बदल रहा है कि हर तरफ जराइम है, हर तरफ जो है खौफनाक ख़बरें हैं। इस वक्त जो ख़बर रख रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक 28 साला शख्स ने लड़की के वालिद का महज इसलिए पीट करके कत्ल कर दिया क्योंकि उन्होंने मुलजिम से अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया था। ये वाक़या बरेली ज़िले के शाही इलाके में पेश आया। पुलिस ने मुलजिम श्रीपाल के ख़िलाफ़ ताज़ीरात हिंद IPC की दफ़ा 304 के तहत फ़िलहाल मामला दर्ज कर लिया है। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट देहात राजकुमार अग्रवाल के मुताबिक मकतूल की लाश उसके घर से बरामद की गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मुलजिम उसकी बेटी से शादी करना चाहता था लेकिन उसने उसकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद श्रीपाल ने लाठी से पीट करके उसका कत्ल कर दिया। मुलजिम ताहाल फ़रार है लेकिन हम उसे जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, ये पुलिस का बयान है। मकतूल के भाई ने कहा कि मेरा भाई अपनी बेटी के लिए एक माकूल लड़की की तलाश में था। हमारा कुंबा श्रीपाल को जानता था। हफ्ते की शब वो शराब की बोतल लेकर हमारे घर आया और मेरे भाई से पीने के लिए कहा और फिर इस दरमियान में जो है अपना मुतालबा रखा। ना मानने की सूरत में पीट करके उसका कत्ल कर दिया। ये मकतूल के भाई ने बयान दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यूपी में जराइम किस अंदाज में आ रही हैं। आज सुबह और कल भी मैंने कई सारी तस्वीर और जुल्म सितम की दास्तानें सुनाई। ये अब ताज़ा दास्तान है कि लड़की से शादी करना चाहता था, ना मानने की सूरत में लड़की के बाप को ही मार करके कत्ल कर दिया। ये हालात है। नाज़रीन गिरामी, ये एक तस्वीर देखें, जम्मू कश्मीर से आई हुई एक मजबूर मज़लूम माँ बाप की तस्वीर है। लंबी रिपोर्ट है, मैं सिर्फ कुछ दी वायर ने इसको अंग्रेज़ी में शाये किया है। 2 बच्चों को इनके इनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्दी का ठप्पा लगा करके, और पुलवामा अटैक के बाद एक बच्चा इनका बचा था, उस बच्चे को भी पुलिस ने उठा ले गए, जो पुलवामा अटैक के बाद शक के नज़रिए के साथ उनके आखिरी लड़के को जो गिरफ़्तार किया गया था, उसके साथ 8 मज़ीद लड़कों को गिरफ़्तार किया गया था। तमाम लोगों को छोड़ दिया गया लेकिन इनके बेटे को जो है अभी तक गिरफ़्तार किए हुए है। ये हालात हैं। मैं ग़ुलाम नबी ख़ान, ये हुंदूरा नामी एक विलेज आता है, आज से 3 साल पहले एक छोटा सा घर बनाया इन्होंने, फ़ातिमा बानो और गुलफ़ाम नबी ख़ान ने, और उसके बाद 3 साल के बाद रिहाइश आराम से थे, एक बेटी के साथ, 3 बेटों के साथ। 2 बेटों को जो लश्कर तैयबा से वाबस्ता होने के नाम पर, जिनका नाम इशफ़ाक़ और शौकत बनाया गया है, उनको जैश मोहम्मद के जंगजू कह कर के मार दिया गया फ़ौजियों ने। और ये 2018 का मामला है। और 2019 में उनका एक बेटा जो मुंबई में माफ़ कीजिएगा दिल्ली में रहता था, पुलवामा अटैक के बाद शक के दायरे में लेकर के तिहाड़ जेल में अभी तक बंद है। 65 साला फ़ातिमा ने एक दी वायर को कहते हुए अपना सारा दर्द बयान किया, तो उन्होंने सारी कहानी जो है दी वायर ने पेश की है कि ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के उन मजबूर और बेकस और मज़लूम माओं और वालिदैन की कि क्या कहें क्या न कहें, कुछ समझ में नहीं जाता। वो सिर्फ़ अपनी दर्द बयां करते हैं। किसी को शक से मार दिया जाता है तो किसी को शक के दायरे में पूरी ज़िंदगी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इस तरह जो है उन्होंने तबसरा करते हुए इस पूरे वीडियो को और पूरे जो है दास्तान को बयान करने की कोशिश की है। मैं तफसील में जाने से बल्कि मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि इन मजबूर और बेकस मज़लूम माँ की निगाहों में देख लें, पूरा कश्मीर नज़र आ जाएगा। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ एक और ख़बर की जानिब, और वो ख़बर है कोरोना वायरस के दौर में
होली का त्यौहार मुल्क भर में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और आज सुबह से आप लोग तस्वीरें देख रहे होंगे रियासत के अक्सर इलाकों की, और बाज़ लोगों को जो है कुछ वीडियो शेयर करते हुए भी देख रहे होंगे कि किस तरह कोरोना लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा रही हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अक्षय कुमार फंस गए इस मर्तबा ट्रोलर के हाथ में। दरअसल उन्होंने अपने एक मशहूर अदाकार हैं, आप लोग जानते हैं फिल्मी दुनिया के, और अक्सर औकात बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से भक्त इनकी बड़ी तारीफ़ भी करते हैं और अलग अलग अंदाज में जो है जो इनको ट्रोल करने की कोशिश करता है उनको गालियाँ भी बकते हैं भक्त लोग, और सोशल मीडिया में बड़े सरगर्म रहते हैं। लेकिन आज यही भक्त इनके लिए मुसीबत बन गए उस वक्त जब इन्होंने कहा कि भाई इस मर्तबा होली अपने घर पर ही खेले। तो इतना कहना था कि हिंदुओं के मज़हब के त्यौहार को तुमने किस तरह जो है घर पर ही खेलने की बात कह करके उन्होंने पूरी तरह से जो है अक्षय कुमार को बायकॉट करने और ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये वही ट्रोलर्स हैं जो अगर इनकी बीजेपी के तय कोई बात सामने आती है तो इनकी तारीफ़ करने लगते हैं। एक छोटा सा ट्वीट क्या कर दिया होली को लेकर के कि भाई इस वक्त घर में होली खेलें, कोरोना फैल रहा है, बहुत सारी चीज़ें वजूहात की वजह से कहा होगा उन्होंने। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसको आप दूध पिला रहे हैं वो डसेंगे तो ज़रूर। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बंगाल की शेरनी हूँ और शेरनी की तरह जवाब दूंगी। ममता बनर्जी ने आज पलटवार किया है बीजेपी पर। नंदीग्राम में उन्होंने कहा जिन्हें सकाफत से मोहब्बत नहीं वो यहाँ सियासत नहीं कर सकते। नंदीग्राम शाहिद है कि यहाँ गुंडागर्दी हो रही है। हमने बरोलिया में इजलास मुनाकिद किया, टीम सी का दफ्तर तबाह कर दिया गया। वो यानी शुवेंदु अधिकारी जो चाहता है कर रहा है, मैं भी खेला कर सकती हूँ, शेर की तरह जवाब दूंगी, मैं बंगाल की शेरनी हूँ। ये कहते हुए उन्होंने जो है आज पूरी तरह से अटैक करने की कोशिश की है बीजेपी को। और जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, मदनापुर में और बहुत सारे इलाकों में इस वक्त जो है लगातार टीएमसी कारकुनान बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़पों की खबर आ रही हैं, एक दूसरे पर हमले हो रही हैं। वहीं पर शुवेंदु अधिकारी ने आज जो है साफ तौर पर निशाने पर लेते हुए ममता बनर्जी को कहा कि बेगम बंगाल को मिनी पाकिस्तान में तब्दील कर देंगी। जी हाँ, बीजेपी लीडरान का वोट हासिल करने के लिए अपने बयानात में पाकिस्तान और मुसलमान का जिक्र करना ज़रूरी है, और पाकिस्तान के नाम पर मुसलमान के नाम पर ये लोग इख्तिदार में आते हैं। किसी ने क्या खूबसूरत अंदाज में तबसरा किया था कुछ दिन पहले कि अगर मुसलमान और पाकिस्तान का नाम 1-2 महीने के लिए बीजेपी अगर भूल जाए तो शायद ही बीजेपी को कहीं एक वोट भी मिले। बहके बंगाल बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने इससे कदम आगे बढ़ते ममता बनर्जी को बेगम भी बोल दिया। शुवेंदु ने अपने बयान में कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण तमानियत कर रही हैं, वो बंगाल को मिनी पाकिस्तान में तब्दील कर देंगी। उन्होंने कहा कि बेगम को ईद मुबारक कहने की इतनी आदत हो चुकी है कि उन्होंने आज होली पर भी होली मुबारक ही कहा है। तो नाज़रीन गिरामी, देखिए कहाँ से किस किस तरह के अल्फाज चुन करके लाते हैं। दरअसल इनको जो बयान लिख करके, खिताब लिख करके देता है, भाषण लिख करके देता है, उसको दाद देनी चाहिए कि उसको कहाँ किस वक्त किस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करके वोटों को पोलराइज करना है, बेहतर अंदाज में जानता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, देखते हैं कि मगरबी बंगाल में बंगाल की आवाम इन फ़िरक़ा परस्त तंजीमों को किस तरह की जवाब देती है। अब जाहिर सी बात है रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितना जो है इस वक्त आवाम को लुभाने में कामयाब हुआ है, तरक्यात के नाम पर या फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर। आइए नाज़रीन, इंडोनेशिया ले चलूँ मैं आपको। इंडोनेशिया के सदर जोको विदोडो ने सलावेसी जजीरे पर वाक़ चर्च के बाहर हुए खुदकश हमले की शदीद मजम्मत करते हुए उसे दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कल बहुत बड़ा हमला हुआ था यहाँ पर चर्च के करीब, जिसमें बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए थे और कई लोगों की जानें गई थी। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंडोनेशिया की जुनूबी सलावेसी सूबे के दारुल-हुकूमत मकासर में इतवार के रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस कैथेड्रल चर्च के गेट पे करीब धमाका हुआ था। इस धमाके में अब तक कम से कम 19 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मुश्तबा हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने चर्च के अहाते में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें चर्च की सिक्योरिटी अमले ने रोक दिया, जिसकी वजह से चर्च के बाहर ही धमाका हो चुका था और खुदकश धमाका था, बल्कि पूरे चर्च को उड़ाने की नीयत से जंगजू वहाँ पर आए हुए थे। बहरकैफ इंडोनेशिया के सदर ने इस वक्त जो है पूरे तौर पर कहा कि ये खुदकश हमला था और इंडोनेशिया को बदनाम करने और यहाँ के हालात को पूरी तरह से अमन माहौल को ख़राब करने की कोशिशें हुई थी। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और पूरी तरह से जो है इस वक्त चर्च के और ईसाई बरादरी के साथ हैं, कहते हुए उन्होंने
بیان جاری کیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آج انڈونیشیا سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک انڈونیشیا کی ایک سب سے بڑے ریفائنری آئل کا جو مرکز تھا وہاں پر جو بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ ہونے کی وجہ سے، آگ لگنے کی وجہ سے یہاں پر کئی لوگوں کے جانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور یہاں تک کہ اس دھماکے کی آواز اس قدر بڑی تھی کہ جو ہے ایک آدمی کا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی جان جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کی تفصیلات ابھی پہنچنا باقی ہے، لیکن فی الحال 5 افراد کے پوری طرح سے جو ہے جھلس جانے اور قریب 99% جو ہے جھلس جانے کی خبریں آ رہی ہیں، اور 1000 سے زیادہ جو ہے لوکلز کو، جو مقامی لوگ تھے، ان کو یہاں سے جو قریب میں واقع تھے ان کو سب محفوظ طریقے سے نکال لیا گیا ہے، اور مزید جو ہے یہاں پر آگ بھڑکنے کی بھی اور جو ہے خبریں آ رہی ہیں۔ اس پر قابو کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن آس پاس کے علاقوں کو پورا خالی کر لیا گیا ہے۔ اتوار کے دن ایک وہ حادثہ تھا، یہ دوسرا جو ہے اس وقت پیش آیا ہے انڈونیشیا میں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔